So everyone note down that today's class we will begin third exercise of NCRT book, third exercise of sequence series from NCRT book. So I want everyone to take out sequence series exercise 9.3. हरिया and in the class we'll do few questions जो कि मैं अभी बोर्ड पे मार्क कर रहा हूँ, एक बार देखना. सो जो मैं अभी बोर्ड पे मार्क करूंगा वो सारे क्वेश्चंस करना है, तो मैं एक बार मार्क कर रहा हूँ बोर्ड पे. So note down. In the class right now we all have to do question number 5 का question number C, then number 6, 11, 17, 19, 23 and 24. First let's do these sums, okay? तो सो आई बिगिन, पहले मैं एक बार स्टार्ट करूँ एक सम, ठीक है? 5 का नंबर सी देखिए. नाउ मैं ये वाले चैप्टर जो भी मैं अभी करा रहा हूँ जैसे 9.3 तक में, ये क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है दूसरे बुक से, ये जस्ट मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना? कि रिवीजन हम लोग को एनसीईआरटी बुक से करके ये देख रहे हैं कि क्या चीज अनकवर्ड है, जो अनकवर्ड चीज है वो हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं, दैट्स ऑल. सो लेट अस बिगिन 5 का नंबर सी. 5 का नंबर सी में एक सीक्वेंस दिया हुआ है व्हिच इज 1/3, 1/9, 1/27 and so on. See, the question is which term of the following sequences is 19683. मतलब इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 19683 ये हमको जानना है. तो सबसे पहला चीज, here we find that the first term of this sequence is 1/3. Common ratio is also 1/3. Check once. 1/3 into 1/3 is 1/9. 1/9 into 1/3 is 1/27 and so on. Now we have to determine that 1/19683 is which term of the sequence. So let it be nth term. So let 1983683 be nth term of the sequence. What is the formula to determine the term? It is a into r to the power n minus 1. You know that when base is same, power gets added, right everyone? जब base same होता है तो power add होता है. So if I add the power, so what is 1 plus of n minus 1? It is n. अब 1 by, अब देखो 19683 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे 3 के फैक्टर्स में. Okay, and we find that 1 2 3 4 5 6 7 8 9, we find that 3 to the power 9 is 19683. So we can write this as 1 by 3 4 to the power 9, because you know that 1 to the power 9 is equal to 1. So we can write this as 1 by 3 4 to the power 9. So base is same, equalize the power. If we equalize the power, the value of n is 9. Means 1 by 19683 is which term of this particular sequence? इस sequence का ये कौन सा term है? It is ninth term. Therefore 1 by 19683 is ninth term of the sequence.
Okay, this is the answer. So 5 का C हो गया. Now you are trying question number 6. Here I am not explaining what is GP because ये सब कुछ already हो चुका है. यहाँ पे सिर्फ हम लोग sums करेंगे. तो मैं ऐसे नहीं. So I'll give time for every question to do. Okay, if you are not able to do, I'll solve it on the spot. So question number 6 लिखना है इधर. Question number 6 में -2/7, comma x, comma -7/2. These three numbers are in GP. Now just you have to use the property of GP. GP में क्या होता है बताओ तो एक बार. कॉमन रेशियो हर जगह क्या होता है, सेम होता है. हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. x का वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन चाहिए ना. और वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? हाउ टू डिटरमाइन दैट इक्वेशन? In order to determine this equation, you know that if these three numbers are in GP, then common ratio will be what? Constant. That is xy -2/7 will be equals to -7/2/x. All right everyone? अगर मान लीजिए तीनों नंबर GP में है, तो this by this, which is the common ratio of the GP, it has to be same as -7/2/x. Let us cross multiply. So we have x square equal to, everything gets cancelled 1. So x equals to how much? Plus minus 1. This is your answer. Okay. So copy out this. So we have done number 6. Now try number 11. Try question number 11 now. So I'll show you now number 11 on the board. So you are asked to evaluate summation of k equals to 1 to 11, and the function is 2 plus 3 to the power k. So everyone note down, in this sum, this summation, ये expression का, ये function का वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा है? k equals to 1 से, और चल कहां तक रहा है? k का वैल्यू 11 तक चल रहा है. मतलब ये एक्सप्रेशन को मुझे कितने बार ऐड करना है? 11 बार ऐड करना है. फर्स्ट, starting with the value of k equals to 1, let us put the value of k equals to 1. So if we put k equals to 1, we'll get 2 plus 3 to the power 1 plus समेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं नेक्स्ट चीज लिखूंगा उसको मैं ऐड करूंगा. ये होता है समेशन सिंबल का मतलब. k equal to 1 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 2. So we can put 2 at the place of k. Then let us put 3 at the place of k. And this will continue till 3 to the power k. Alright? Sorry, 3 to the power 11. Because k का जो last value है वो क्या है? 11 है. Now tell me, you have got 1, 2, 3, you have got such how many terms? Can you tell me? You have got total 11 terms. ठीक है? Total 11 terms है. इसका हम 2 को क्या करेंगे? अलग कर देंगे. 2 11 terms. कितना मारेंगे? 11 terms तक है. 2 plus 2 plus 2. समझ में आया क्या? Plus 2 plus 2 square plus 2 cube plus 2 to the power, I'm sorry, 3 plus 3 square plus 3 cube plus dot 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 up to 3 to the power 11. Now sum of 2, if you add 2 3 times, it is 6, and you just see it is equals to 2 into 3 6. If you add 4 times, it is equal to 8, that is 2 into 4 8. So if I add 11 times, it will be 2 into 11, that is 22. This is clearly a GP whose first term is 3. Common ratio is also 3. And you have to find sum of how many terms? 11 terms. So we can use the formula A into r to the power n minus 1 by r minus 1. So the answer is 22 plus 3 by 2 into 3 to the power 11 minus 1. This is the answer. Try number 17 now.
सीरियसली सारा सॉल्व करते हैं, जिसका जो डाउट है वो देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 17 में देखना है, if the 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y, z respectively, so let A and R be the first term and the common ratio respectively. Okay. Now इस GP का अगर मान लो लिखा हुआ है जैसे दिया हुआ है, is given 4th term. The value of 4th term is equal to how much? It is equal to x. So can I say that a into r to the power 3 is equal to x, mark it as 1. उसके बाद लिखा हुआ है कि 10th term y है, तो हम लोग बोल सकते हैं a into r to the power 9 is equal to y, mark it as equation number 2. और इसका 16th term and 16th term का वैल्यू z है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं a into r to the power 15 is equal to z, mark it as equation number 3. Now what you have to prove? You have to prove that x, y, z are in GP. You have to prove that x, y, z are in GP. अगर मान लो हम लोग को प्रूव करना है कि x, y, z GP में है, इसका मतलब हम लोग को ये प्रूव करना है कि x into z is equal to y square. Do you remember this part? Yes everyone. अगर मान लो x, y, z GP में है, इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि x into z जो है वो किसके बराबर है? y स्क्वायर के बराबर है। तुम लोग देखा होगा पहले भी कि अगर मान लो दो नंबर्स है a और b और उसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन अगर कैपिटल G है, so can I say that g square is equal to ab? ऑलराइट एवरीवन, g square equal to how much? ab. तो वैसे हमको ये प्रूव करना है कि y square equal to how much? xz. तो करेंगे क्या हम लोग इसके लिए? लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड. Now put x, which is ar cube, and z, which is ar to the power 15. Now when base is same, power gets added. R cube into r to the power 15 becomes what? R to the power 18. Alright, और हम लोग को क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि y स्क्वायर के बराबर है, y का स्क्वायर के बराबर है. तो देखो एक बार ध्यान से, y है a r to the power 9, तो हम r to the power 18 को r to the power 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको लिख सकते हैं हम लोग a into r to the power 9 का होल स्क्वायर. Alright, and what is this a r to the power 9? It is equal to y. Check once. ठीक है, hence we can say that x, y, z are in GP. Everyone hurry up, copy it fast. You have a second. I think question is not now. Now see question number 19. So square 32 to the continue. देखो क्या बोला जाए, ध्यान रखो. Find the sum of the products of the corresponding terms of the sequences. मतलब दो अलग अलग सीक्वेंसेस हैं. पहला सीक्वेंस का पहला टर्म है 2, सेकंड टर्म है 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 2 to the power 3, फोर्थ टर्म इज 2 to the power 4 एंड फिफ्थ टर्म इज 2 to the power 5. दूसरे वाले सीक्वेंस का पहला टर्म है 128, तो 128 कितना होता है बताओ तो एक बार? 2 to the power 7 होता है ना शायद. 32 कितना होता है? 2 to the power 5, 2 to the power 3 and 1/2. अब देखो कंसेक्यूटिव मतलब पहला को पहला से मल्टीप्लाई करो, तो 2 into 2 to the power 7 कितना हो जाएगा? 2 to the power 8 हो जाएगा. 2 to the power 2 into 2 to the power 5 will become 2 to the power 7, 2 to the power 6, 2 to the power 5, and what is 2 to the power 5 into 1/2? It is 2 to the power 4. Alright, अब देखो ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है बता सकते हो? 2 to the power 8 है.
कॉमन रेशियो क्या है बताओ तो एक बार, 1/r, सॉरी हाफ है, ठीक है, बिकॉज इसमें अगर हम हाफ मल्टीप्लाई करें तो 2⁷ आएगा, इसमें हाफ मल्टीप्लाई करें तो 2⁶ आएगा, और यहाँ पे मुझे कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है बता सकते हो तुम लोग? 1 2 3 4 5, पहला 5 टर्म्स को ऐड करना। अब बस यहाँ पे जीपी का समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना। तो फॉर्मूला क्या होता है? a 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. I hope it is clear to everyone. क्वेश्चन में यही बोला था कि इस दो अलग अलग सीक्वेंसेस का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट का सम निकालो। समझ में आया तो बात? तो इसका कैलकुलेशन तुम लोग कंप्लीट कर लेना और जल्दी से कॉपी कर लो। See, one thing I'll tell you, number 23 is exactly same as question number 1770, लगभग सेम है। देखो ध्यान से कैसे, if the first and nth term of a GP are a and b respectively, तो जिस GP का हम लोग बात कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है GP का, and nth term of a GP is b. Now we don't know what is the common ratio, so let r be the common ratio. अब देखना एक बार, what does p denotes? P denotes the product of first n terms. कैपिटल P क्या डिनोट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? We have to prove that p square is equal to ab whole to the power n, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो एक बार ध्यान से नोट करना सब, ओके ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोग को प्रूव करने की, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान से, सबसे पहला चीज, अगर मान लो nth टर्म b है, we know that nth term of a GP is b, so can I say that a r to the power n minus 1 is equal to b? Mark it as 1. And if p is the product of first n terms, so tell me what is the first term? It is a1, second term is a2, third term is a3, fourth term is a4 and so on, nth term। तो बताओ तो पहला टर्म a1 क्या होगा? a, सेकेंड टर्म क्या होगा? ar, बिकॉज यू नो दैट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज a into r to the power n minus 1, और मैंने r क्या रखा है यहाँ पे? कैपिटल R लिया है यहाँ पे। a3 क्या होगा? ar स्क्वायर, a4 क्या होगा? ar क्यूब, और an क्या होगा? ar to the power n minus 1। ऑलराइट एवरीवन, अब मुझे बताना तुम लोग 1 2 3 4 ऐसा कितना फैक्टर्स है टोटल, बता सकते हो तुम लोग? ऐसा टोटल कितना फैक्टर्स है? देयर आर टोटल हाउ मेनी फैक्टर्स? देयर आर टोटल n फैक्टर्स, क्योंकि ये पहला फैक्टर है, ये जो है ये पहला टर्म का है, ये सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्थ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन से टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? nth टर्म को। इसका मतलब अगर हम लोग ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो, सारा a को हम लोग अलग कर देंगे, मतलब a into a n फैक्टर्स, कितना है ये? n बार है, ठीक है। n टर्म्स मत लिखना, क्योंकि जब सम फॉर्म में होता है तो टर्म्स लिखते हैं, जब प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? फैक्टर्स, ठीक है। समझ में? उसके बाद मैंने क्या किया, सॉरी, उसके बाद मैंने r वाले को सेपरेट कर दिया, देखो ये रहा r, उसके बाद r स्क्वायर, r क्यूब, r टू द पावर n minus 1। नाउ टेल मी, a को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? a क्यूब, 4 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? a टू द पावर 4, अगर हम n बार मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? a टू द पावर n हो जाएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है।
अब बता सकते हो तुम लोग ये कैसा सीरीज है, आर के पावर पे जो 1 + 2 + 3 जो है ये कैसा सीरीज है बताओ तो एक बार। AP. एपी सीरीज है जिसका पहला टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी 1 है। कितने सारे टर्म्स है यहाँ पे बता सकते हो तुम लोग? N-1. n-1, वेरी गुड। टोटल n-1 टर्म तक का हमको समीशन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 ट्वाइस से दैट इज 2 × 2 n-1 × 1। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा n(n-1/2। एक बार देखना फिर से n/2 2 × a दैट इज 2 n जो कि n-1 है -1 × d, d यहाँ पे 1 है, इतना रहेगा। सॉल्व करके क्या आ गया, मतलब यहाँ पे हम लोग को p क्या मिल रहा है a⁴n r⁴ ½ × n(n-1). मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ab⁴n इज इक्वल टू व्हाट p²। ठीक है, नाउ लेट अस टेक राइट हैंड साइड। अब देखना एक बार, a तो फर्स्ट टर्म है जैसा वैसे रहने दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज a × r⁴n-1। क्लियर एवरीवन? a तो a ही रहेगा और b क्या होगा, b होगा a r⁴n-1। ऑलराइट एवरीवन? और हम लोग को शो क्या करना है, हम लोग को शो करना है कि p का स्क्वायर के बराबर है, इसका स्क्वायर के बराबर है। a × a becomes a²। I can write this as a² whole to the power n, this as r⁴n-1 whole to the power n। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a⁴2n और यहाँ पे r⁴n × n-1 हो जाएगा। ओके, एंड एवरीवन चेक वंस, ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये किसका स्क्वायर के बराबर है? चेक कर लो एक बार, तुम एक बार इसका स्क्वायर करो, देखो एक बार इसका स्क्वायर करो, इसके स्क्वायर के बराबर है, चेक करो। एवरीवन प्लीज चेक वंस, जो मैंने यहाँ पे आंसर लाया ये देखो इसके स्क्वायर के बराबर, चेक करो p का स्क्वायर के बराबर है, जस्ट नोट डाउन। You can write this as a⁴n का होल स्क्वायर। पावर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया a⁴2n, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, देखो है कि नहीं इसके बराबर। ठीक है, तो ये तुम लोग थोड़ा घर पे सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, एवरीवन कॉपी इट। सो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। यहाँ तक ही मेन स्टेप था, उसके बाद तो बस इसका प्रूफ का RHS लेकर के सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये जो आया चेक कर लो कि क्या ये p का स्क्वायर के बराबर है। देखो p का स्क्वायर करेंगे तो यही है,